गोटे सेकेंड। अच्छा, आगुर वॉइस क्लियर थिला ना एबे क्लियर अछि वॉइस? आगुर वॉइस क्लियर थिला ना एबे भलो अछि ना सेम अछि? स्टार्ट करे क्लास को। तो आज बाकी सब। अच्छा, एबे समस्त वॉइस क्लियर अछि? एबे समस्त वॉइस मोर क्लियर अछि? नो इशू। ओके। तो ठीक अछि, बर्तमान हम क्लास को स्टार्ट करिवा। तो आज हम डिस्कशन करिवा आईएनसी। हमें आज डिस्कशन आईएनसी माने इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ हम कौन कहूचे आईएनसी बोली कहूचे। ओके। अच्छा, पीडीएफ समस्त शो शो होची। बर्तमान पिज्जा समस्त पीडीएफ शो होची। समस्त पीडीएफ शो अछि। ठीक अछि। तो ऑलरेडी आम डिस्कशन कौन सब प्ले करिछु ना ऑलरेडी आम डिस्कशन करिछे जे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट विषय डिस्कशन करिछे। ता सहित आम डिस्कशन करिछे ट्राइबल मूवमेंट। तो छोट छोट फेज करी मु हिस्ट्री को कंप्लीट करी। आज गोटे क्लास रे मु संपूर्ण इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ को आम कहूचे कौन आईएनसी भितर संपूर्ण डिस्कशन करी। आ मन रख, ए आईएनसी जो नोट अच्छी एटा केवल इंग्लिश रे नोट मु देवी कहीं ना आईएनसी टा ओनली प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रे ही क्वेश्चन आसता है। इतने मेन पॉइंट ऑफ व्यू रे किसी क्वेश्चन न था। बस हमें देखिबा को इंपोर्टेंट पॉइंट रहउछि जोटा कि आईएनसी रो जोटा कि हम भाई बहुत दरकार रहउछि। ओके। तो प्रथम कथा होछि जे आईएनसी रो फाउंडेशन किए करथिले? एनीवन आंसर? जे आईएनसी को किए फाउंडेशन करथिले बा आईएनसी किए तैयारी करथिले? एनीवन आंसर? मन रखियो आलान ऑक्टेवियन ह्यूम, जहाँ को आम सर्टकट रे कही एओ ह्यूम, जी कि जने रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। जी कि जने कौन थे? रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जे कि कहा को तैयारी करथिले ना फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस बा आईएनसी को तैयारी करथिले। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି ଆଜ ଏ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇଏନସି କହୁଛେ, ଆର ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ନା ଏ ଓ ହ୍ୟୁ ବା ଆଲାନ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ ହ୍ୟୁମ ବୋଲି କହୁଛେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନା ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ମନେ ରଖିଲେ ବହୁତ ବାର ଏକ୍ସାମ ରେ क्वेश्चन आसीची काहाको नेकरी ना दादा भाई नारोजी को नेकरी क्वेश्चन आसीची। इवन प्रिलिम एग्जाम ओपीएससी रे ମଧ୍ୟ बहुत बार दादा भाई नारोजी को नहीं क्वेश्चन आसीची। मु जदी क्वेश्चन करे पिले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया काहा को हम कहथो? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया काहा को जेते पिले? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। एनीवन आंसर? दादा भाई नारोजी को, दादा भाई नारोजी को आमे कौन कहिथो? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहिथो। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଟା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କୋଉ ଭଳି ଆଜି ୱାର୍କ କରୁଥିଲେ ନା ଅନ୍ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କଣ ନା ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ, ଯିଏ କି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖ, ସିଏ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା इंडियन एसोसिएशन। कौन थिला? एसोसिएशन। कोड तैयारी करथिले इन इंग्लैंड। तो इसे देखो, हाँ
ଦେଖ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଏନସି ତିଆରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସୋସିଏସନ, ଯିଏକି କୋଉଠି ଥିଲା ପିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତ ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ତ ବ୍ରିଟିଶ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସକୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ପିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ ବୋଧେ ସେ କହୁଛି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆମେ କାହାକୁ ନେଇଛେ ନା ଆଲାନ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ ୟୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ ଏଓ ହ୍ୟୁମ ବୋଲି କହୁଛେ। ମନେ ରଖିଲେ এই ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାରା ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ପଭର୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। କଣ ଆସିଲା? ଅନ୍ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ ଦିଟା ବହି ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ଯେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ୍ଲାସ କରୁଛ ବା ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଁ କୌଣସି ଟପିକ ପଢଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବୁକ୍ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଚଟି ଖାତା ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ ଚଟି ଖାତା ରଖିଥିବ, ସେ ବୁକ୍ ନା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ବୁକ୍ ନା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇୟର, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହୁଛେ ଆଇଏନସି, ଏଟା 1885 ମସିହାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି 1885 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର। ତାପରେ ସେ ଚଟି ଖାତାଟା ତମର କଣ ଲେଖା ହବ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇୟର ଆଉ କୋଉ ବହି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ଆଜି ରିଭିଜନ କେସେସରେ। ଓକେ, ଆଉ ମନେ ରଖ ଇନ୍ 1885 ରେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ୱାଜ ହେଲ୍ଡ। ତାର ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆଇଏନସି ବୋଲି କହୁଛେ, ଆର ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ବମ୍ବେ। ମନେ ରଖିବ ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଫ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଫ କିଏ ସିନା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟକଟରେ କହିଥାଉ WBC ବାନାର୍ଜୀ। ତ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ଇଭେନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଛି କୋଉଥିରେ ନା ଓପିଏସସି 2022 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ କିମ୍ବା 21 ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ହୁ ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଆଇଏନସି ବା ଆଇଏନସି ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଥିଲେ WBC ବାନାର୍ଜୀ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ ହେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ସେସନରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ କି କହିବ? আচ্ছা, 72 ডেলিগেটর্স। ডেলিগেটস অর্ଥ କଣ କହିଲେ ପିଲେ? ମାନେ ଆଇଏନସି ର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି, ଧର ଆଇଏନସି ତ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତାର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ବା ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ 72 ଥିଲେ। ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ଆଇଏନସି କୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସିଜମ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆଇଏନସି ପ୍ଲେଇଂ ଆଜ ଏ ବବଲ, ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଫୁଟେଇବା ଭଳି। ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ କିଛି କ୍ରିଟିସିଜମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇଏନସି ର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବା ଆଇଏନସି ର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି 72 ଜଣ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଡେଲିଗେଟର୍ସ, ଯିଏକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯଦି ଆଇଏନସି କୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଯୋଉଟା କି 1885 ରେ ହେଇଥିଲା, ଯେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ବା ସେଟା ଆମର ଭାଇସ ରୟ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନୁହେଁ, ଏଟା ଭାଇସ ରୟ। ସେ ସମୟରେ ଭାଇସ ରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଏଟା ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। କିଏ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ଲର୍ଡ ଡଫରିନ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏ ଦେଖ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପଢେଇବି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି ଟୋଟାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଭାଇସରୟ। ତ ସେଥିରେ କଣ କରାଯିବ? ସପୋଜ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ, ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ କଣ ହେଇଛି। ସପୋଜ ତୁମକୁ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ପଢେଇଲି, ତା ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ତମର ରିଭିଜନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟରେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେ ଗୋଟେ ଆଜ ଏ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥାଅ, ଯେ ଲର୍ଡ ଡଫରିନ ଯିଏ ଥିଲେ ଭାଇସରୟ ଆଟ ଦ ଟାଇମ ଅଫ ଆଇଏନସି ଫର୍ମେସନ ବା ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ये थिला इंट्रोडक्शन, जे काहाकू नेकरी ना आईएनएस को नहीं। ये कौन थिला? इंट्रोडक्शन काहाकू नेकरी? आईएनएस को नहीं। एठी गोटे जिंस मु कहବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହିବା କେବେ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନ ବା ଯାହାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏନିୱାନ ଆନ୍ସର? 1857। थैंक यू। 1857 सिपाही विद्रोह हो, विभिन्न सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो, विभिन्न ट्राइबाल मूवमेंट हो, तो इटे देखा जाइए बहुत प्रकार मूवमेंट हवा सत्वे मध्य समस्त मूवमेंट फेल्युअर ହେଇଛି। आर बहुत सारा कारण था, जेमति कि अवेयरनेस ठीक से नथिला, एजुकेशनल अवेयरनेस ठीक से नथिला, पॉलिटिकल अवेयरनेस मध्य नथिला, इकोनॉमिकल अवेयरनेस नथिला,
नेशनलिज्म जो देश प्रति जो भाव देश प्रति जो प्रेम से जिनस नथिला बस गोटे कम्युनिटी को नहीं प्रेम थिला गोटे एरिया को लेकिन से भल पाइबा थिला किंतु गोटे देशर गोटे प्रेम जे आम इंडियन ए जो माने नेशनलिज्म जो जोश बा से कॉन्सेप्ट नथिला आईएनसी तैयारी करागला तार मुख्य उद्देश्य थिला आग लोकों को परिवर्तन करबा कहीं आम जो कौन स्टेप नौचे आम जो कौन विद्रोह करुचे बा आंदोलन करुचे जदि समस्त एक मन एक भाव न हम तो आम कौन जिन सक्सेस पाइबानी तार तो आर गोटे ऑब्जेक्टिव को लेकर ये प्रथम स्टार्ट करला कौन कौन थिला अच्छा ऑब्जेक्टिव रे फास्ट हम देखिबा पॉलिटिकल अवेयरनेस तो प्रथमे राइज इन द पॉलिटिकल अवेयरनेस इंडियन पॉलिटिक्स रे पॉलिटिकल अवेयरनेस को इंक्रीज कर जे एक्चुअली हम भारतीय मानक मन भितर जे पॉलिटिकल अवेयरनेस जागृत करबा जे हमको ए जिंस दरकार हमको हमको इंडिपेंडेंट आवश्यकता अछि हमें डेमोक्रेसी कंट्री हिसाब रे रहबार अछि जहां भी किछि पॉलिटिकल अवेयरनेस फास्ट डेवलप करिवार थला लोक मानक मध्य तापर आसला नेशनलिस्ट मूवमेंट कोन डेमोक्रेटिक एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट तो जे डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को माइंड रे लोक मानको आनिबा तापर आसला एंटी कॉलोनियल आइडियोलॉजी ए जिंस माइंड को आनिबा एमती बहुत किछि कॉन्सेप्ट को नेकरी से माने प्रथम कोन करथिले ना ऑब्जेक्टिव हिसाब रे आनथिले एटा केबे एग्जाम रे प्रीलिम आसीबनी बस तुमको गोटे आइडिया आनीगली जे कहीं आगर मुख्य स्टार्टिंग नथला जे आमे हठात किना स्ट्राइक करिबा हठात किना आंदोलन करिबा ये एटा नथला प्रथमे लोक मानको अवेयरनेस करिबा सेमानको भितरे जागृत आनिबा सेमानको प्रथमे कॉन्सेप्ट যেতবে আইএনসি ফর্মেশন হেলা প্রথমে মডারেট ফেজ কু নেই স্টার্ট হয়েছে কোন হয়েছে পিলে প্রথমে মডারেট ফেজ কু নেই স্টার্ট হয়েছে দেখ যদি আমি মডারেট ফেজ কহিবা এটা বহুত কোশ্চিন আসিছি আইএনসি র মডারেট ফেজ কেউ ইয়র রু কেউ ইয়র পর্যন্ত মনে রাখিও পিলে মডারেট ফেজটা হচ্ছে 1885 রু 1905 মସିହା পর্যন্ত হচ্ছে মডারেট ফেজ তুমি দেখিব পরবর্তী অবস্থায় एक्सट्रीम आसुचंती मॉडरेट आसुचंती तो डिवीजन हिचे फिर भी परवर्ती अवस्था से मिसिचंती किंतु पर्टिकुलर मॉडरेट फेज टा अप टू कोउ ईयर रु केउ ईयर पर्यंत थिला ना 1885 रु 1905 पर्यंत मॉडरेट फेज थिला अच्छा ए मॉडरेट फेज रो साधारणतः की लीडर को मान थिले बहुत जाक लीडर थिले किंतु की लीडर के थिले दादा भाई नारोजी उमेश चंद्र बनर्जी जे के फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थिले अच्छा तापर आसले के सुब्रमण्य आयर जे कि गोटे फाउंडेशन थिला कहार फाउंडर थिला द हिंदू रो फाउंडर थिले ता सहित जो ऑल्सो फाउंडर ऑफ माद्रास रो ओके तो ए मन रखियो दुईटी एकर गोटे जनकर फाउंडर थिले आ जनकर को फाउंडर थिले अच्छा तो एमती सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो एमती किसी जन नाम को मन रखियो जे कि आज की लीडर थिले कहार ना मॉडरेट फेज रो कहार थिले मॉडरेट फेज रो इंपोर्टेंट होची किए से ना सुब्रमण्य आयर जे कि कहार फाउंडर थिले और कहार को फाउंडर थिले मे बी क्वेश्चन आस पर फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एटा क्वेश्चन आस पर अच्छा अच्छा मु तुमको कहया चाहूँ अच्छा राष्ट्रगुरु आंक भितर क्या कुआ जाए ये पॉइंट मुझे लिखिनी तुम कह दूसरी राष्ट्रगुरु आंक भितर क्या राष्ट्रगुरु बोली कह जाए एमान भितर क्या राष्ट्रगुरु बोली कह जाए कि कहबा आंसर एमान भितर क्या राष्ट्रगुरु बोली कह जाए एनीवन आंसर ये आंसर दियो राष्ट्रगुरु में क्या कहबा दादा भाई नारोजी सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहे पिले सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या कहे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को आम कौन कही था राष्ट्रगुरु बोली कही कौन कही राष्ट्रगुरु बोली कही चल एबे जा नेक्स्ट पेज अच्छा तापर आसला होची कोन ना अप्रोच ऑफ मॉडरेट लीडर्स जे साधारणतः मॉडरेट लीडर मानकर अप्रोच कौन थिला बस तांकर प्रमुख उद्देश्य कौन थिला जे तांकर प्रमुख उद्देश्य ए नथिला जे आमे हठात किना स्ट्राइक करिबा आंदोलन करिबा ए मोटिव नथिला तो सेमान प्रथमे आज पेशेंस सेमान पाखे थिला कोनोसी जिंस सक्सेस को पाया पहले पेशेंस होची सबले पय इंपोर्टेंट जदि तुमे ओएस प्रिपरेशन करूछो पाखरे पेशेंस नथिबो
आज राताराति पूरा चार्टा 4-5 दिन पूरा धूम से पढ़ा तापर टोटाल पढ़ानी ये जिन बोल मन भर पेसेंस रहा दरकार जे मत रेगुलर बेसिस प्रत्येक दिन पढ़ार अच्छे ये जो पेसेंस रहा दरकार तापर आसला एजुकेशनल अवेयरनेस पीपुल मान करवा पॉलिटिकल अवेयरनेस हो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल माने कॉन्सेप्ट माइंड को आनिबा एमती छोट मोट जिनस से माने फास्ट से टार्गेट करते जोटा कि आज तुमको जानिया रखाई कि प्रिलिम ओरिएंटेड क्वेश्चन ना आउ क्लास रे मु कहिदेबी को जिनस प्रिलिम ओरिएंटेड रहउछि काहेकि ना तुमे जतले पढुथिबो से जिनस ऊपर टिके फोकस करथिबो तापर आसिला होछि कोन अचीवमेंट पे मॉडरेट्स यदि आमे देखिबा कारण मॉडरेट को नेकिरी बहुत माने कोन थिला कोन कहलो माने आउ माने नेगेटिव थिला जे साधारणतः आईएनसी ओटे नेगेटिव थॉट थिला से ओटे प्लेइंग विथ ए बबल एमती विभिन्न किछि नेगेटिव कोड थिला जोटा कि किछटा ताको साइड करी आमे देखिबा अचीवमेंट से माने कोन आसिला से प्रथमे अचीवमेंट होछि कोन जे कि नेशनल आउ माने नेशनालिटी जो कॉन्सेप्ट अच्छी पीपुल मानक भितर ऑल ओवर द कंट्री रे अवेयरनेस क्रिएट कर परथिले जे सिविल लिबर्टी सेक्युलरिज्म ये जो आइडिया अच्छी जो हमरो सेक्युलरिज्म रो जो कांसेप्ट आसला लिबर्टी रो कांसेप्ट आसला ए जिंस से इंप्रूवमेंट करि परथिले लोक मानक भितर जहा द्वारा लोक माने एक हिचंती लक्ष्य करियो पिले हमें सेना भाबू जे देश स्वाधीनता हमें कोठ हमरो एक्चुअली रियली स्टार्ट हिची जेतरा आईएनसी तयारी हिची आईएनसी रो प्रथम जो स्टेप थिला जे लोक मानक हमें अवेयर करबा लोक मानक जागृत करबा तापर हम कोनोसी एक्शन नबा अच्छा तापर आसला इकोनॉमिक ठारू माने इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो बा पॉलिटिकल एक्सप्लोटेशन ए सब जिंस ऊपर अवेयर करबा सेल्फ गवर्नमेंट लोक मानक भितर अवेयरनेस किरा ना डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट ए कांसेप्ट माइंड भितर आसीबा ए समस्त जिंस हेतला अच्छा गोटे कमिशन सेशन आसला जार ना होची ओएलब्ली कमिशन अच्छा किए कहि परबे कमिशन रो माने कोन ए कमिशन कोन पे आसला पिनवन आंसर ओएलब्ली कमिशन এটা ବହୁତ क्वेश्चन आसी केबे आसला এটা হচ্ছে 1895 रे आसला जो ओएल बिल कमिशन आसला सारांश এটা ମୁଁ କହି ଦଉଛି एक्चुअली ए कमिशन काहे आसला देखो 1895 रे आसला ए कमिशन आनिथिला किसे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट मनको बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एथिबा एथला इंडियन एक्सपेंडिचर तो जे इंडियन को ना नै कि कंपनी तो कोन करथला बहुत बहुत सारे एक्सपेंडिचर करथला खर्च करथला आर कम्प्लीटली तदारख करने यही कमिशन आसाला जहाँ ना आसाला वेलब्ली कमिशन जोटा कि 1895 आसाला कहा बेस कर इंडियन एक्सपेंडिचर को बेस कर आसाला एटा मन रखिबो एटा मे भी क्वेश्चन आसीपारे अच्छा तापर कौन है ना परवर्ती अवस्था रे आ गोटे इंडियन काउंसिल एक्ट आसी जार ना हूँ 1892 एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट जार ना हूँ 1892 एक्ट जोटा कि ए एक्ट आसीबा पूर्व एर्लियर डिमांड मेड बाय द आईएनसी तार अर्थ ये जो एक्ट अच्छी ए एक्ट आसीबा पूर्व आईएनसी रो डिमांड कौन थिला जे जे तुमरो जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस माने माने रिफॉर्म करबे काहाकू ना जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस अछि ताकू रिफॉर्म करबे ताकू परिवर्तन करबे तापर आसिला कोन ना इलेक्शन इलेक्शन इन प्लेस ऑफ नॉमिनेशन इन द गवर्नमेंट तो इलेक्शन जो प्रोसेस अछि ताकू परिवर्तन करबे मिलिटरी स्पेंडिंग शुड बी रिड्यूस तो जो मिलिटरी आमे एक्सपोर्ट करबा माने माने जोठ पाउछ जेमिति बा मिलिटरी पॉइंट को लागू करूछे बा जहां भी कछु ताको रिड्यूस करियार थिला तापर आउटे कोन थिला सिविल सर्विस एग्जाम शुड बी हेल्ड इन इंडिया तो आगुर कोन होतला ना सिविल सर्विस एग्जाम दा आउटसाइड इंडिया होतला तो साधारणतः तुमरो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आसिला आ पूर्वरु हमरो डिमांड थिला या जे बा आईएनसी डिमांड करथिला जे सिविल सर्विस एग्जाम कोन होबो ना हम इंडिया रे होबो मिलिटरी स्पेंडिंग शुड बी रिड्यूस्ड माने आमे जो मिलिटरी को एक्सपोज करूचे आमे ताको रिड्यूस करिबा ताको माने माने आवश्यक अनुसार ताको यूजेस करिबा तर इलेक्शन प्रोसेस को यूज करिबा लेजिस्लेटिव प्रोसेस को रिफॉर्म करिबा ए समस्त जिंस हमर डिमांड थिला जेतेबेले ए जिंस आसिला कोन आसिला जेतेबेले तुमानकर इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आसिला एठी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आसिबो जे एक्चुअली इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आसिबा परे कोन हिची मन रख आगुरु आम मानकर जो थिला लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला आगु कोन थिला लेजिस्लेटिव काउंसिल थिला ए लेजिस्लेटिव काउंसिल को चारि भाग रे विभक्त कराइछ फोर कैटेगोरी को डिवाइड कराला
फास्ट पॉइंट मन रखो। आफ्टर द किस ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पर पर अवस्था रे द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग वर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। केतरा पार्ट डिवाइड करा हला? चारोटी पार्ट रे डिवाइड करा हला। ए चारोटी पार्ट रे नाम को मन रखिबो काहे कि ना आकु यूपीएससी रे मध्य बहुत बार क्वेश्चन देछि। गोटी ना होछि ऑफिशियल मेंबर, नॉन ऑफिशियल मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर। बुझा पड़े समस्त को? हमरो जो फर्स्ट जो फेज थिला हमें जाको चारि भाग जो विभक्त कले लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग कोन कोन कला बेले हमर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल अछि चारि भाग जो डिवाइड कले कोन कोन इन वन आंसर स्पीड। लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग जो थिला हमको चारि भाग विभक्त कले कोन कोन स्पीड। कारण एटा ऑलरेडी क्वेश्चन आसी छि यूपीएससी जे आंक भितर की नुहे जो चारटा पार्ट रे लेजिस्लेटिव काउंसिल मन रखिले। हाँ, गोटे हूँ ऑफिशियल मेंबर, गोटे हूँ नॉन ऑफिशियल मेंबर, गोटे हूँ इलेक्टेड मेंबर, आउ गोटे हूँ नॉमिनेटेड मेंबर। देखो मुझे गोटे जिन कहना चाहूँगी ऑफिशियल मेंबर आम क्या कहना? ऑफिशियल मेंबर आम से कहवा से बर्तमान आम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री अच्छा बुझीपार तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री क्या कहवा 15% जो रही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बुझीपार तो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री तो सेतबेଳର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଅଫିସିଆଲ ମେମ୍ବରକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ସେ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତ ବାକି ଯାହା ରହିଲେ ନ ନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖାଲି ତିନୋଟିର ଚାରୋଟି ଆମେ ଯୋଉ ଡିଭାଇଡ କରିଛେ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏଠି ଖାଲି ମନେ ରଖିବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ପିଲେ ଯେ अच्छा तो इठी तुमको रखाला गोटे हूँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है आउ गोटे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मिनिमम रहिबे 20 जन, मैक्सिमम रहिबे 16 जन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल रे मिनिमम रहिबे 10 जन, मैक्सिमम रहिबे 16 जन। आंका नाम मन रखियो माने केते मिनिमम केते मैक्सिमम केते आ ये जो देछि बॉम्बे रे केते रहिबे, मद्रास रे केते रहिबे, बेंगल रे केते रहिबे एरा मन रखिया आवश्यकता नहीं। बस तुमको रखियो मिनिमम 10 मैक्सिमम रहिबे 16 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଚାରୋଟି ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କରାଗଲା ଏ ଚାରୋଟି ପାର୍ଟ ର ନାଁ କୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ରେ ଡିଭାଇଡ କଲେ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ଏମାନେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିବେ? ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବେ କି ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ନୋମିନି ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ତାଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନୋମିନି ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ନୋମିନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମନେକର ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବଜେଟରେ ତାଙ୍କ ହାଉସର କୌଣସି ବଜେଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିପାରିବେ କହିବାର ପାୱାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦେବାର ପାୱାର ନାହିଁ। ତାପରେ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଯୋଉ ଭଳି ଥିଲେ ଇଏ ହଉଛି ସେଇଭଳି ମାନେ ସେଟା କାମ ଅଲଗା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବସିବେ ବଜେଟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିବେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ମେ ବି ଆକୁ ନେଇକି ଏପଟ ସବୁ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରେ ଯେମିତି କି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନି ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ। ସେମାନଙ୍କ ରୁଲ ଅଫ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ନୋମିନେସନ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ରୁଲକୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବ? ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଡାକୁଛି ଲେଖ ଯୋଉଟା କି ଏ ନୋଟରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଟିକେ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଲେଖ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତମକୁ ଥରେ କ୍ଲାସରେ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ନୋଟରେ ନାହିଁ। ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯୋଉଟା କି ଆଇଏନସି ର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏନସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ପ୍ରଥମ ଆଇଏନସି ର ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଚେୟାରମ୍ୟାନ କହୁଛେ। ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ଆଇଏନସି ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ବାନାର୍ଜୀ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ। ଏବେ ଲେଖ ଆମକୁ ତିନୋଟି ସେସନ ଲେଖିବା। ତିନୋଟି ସେସନ କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ସେସନ। ଆଚ୍ଛା ଫାଷ୍ଟ ସେସନ ସର୍ଟକଟ ଲେଖିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ସେସନ କେବେ ହେଇଛି ନା 1885 ରେ। ଲେଖ ବମ୍ବେ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସି ବାନାର୍ଜୀ। ଓକେ ତାପରେ ଲେଖ
सेकेंड सेशन। अच्छा सेकेंड सेशन कोठी छिले 1886 रे। सेकेंड सेशन केबे हिची 1886 कोठी छिले। सेकेंड सेक्शन रे हिच कोठी कलकत्ता। कलकत्ता। अच्छा प्रेसिडेंट किए थे कलकत्ता जे प्रेसिडेंट किए थे। प्रेसिडेंट किए थे दादा भाई। दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी। अच्छा ये था दीटा सेशन। अच्छा तृतीय सेशन। थर्ड सेशन। थर्ड सेशन कोठी हिच पिले केबे हिच ना ठीक ता परवर्ती से स्टेप रे 1887 रे कोठी हिच मद्रास रे। मद्रास। प्रेसिडेंट किए थे पिले। प्रेसिडेंट किए थे बद्रुद्दीन ताइजी। बद्रुद्दीन ताइजी। बद्रुद्दीन BADRUDDIN बद्रुद्दीन ताइजी TYABJ ताइजी। अच्छा ताले आमे एठी देखिदेले जे हमरो कन्स्टेंटली जो तीनटा सेशन केउठी हेछि किए आर प्रेसिडेंट हेछंती आ केबे हेछि ए तीन से क्लियर होला। चलो एबे देखिबा आईएनसी रो। आईएनसी रो फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट। फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट। वुमेन ठीक है। आईएनसी रो फास्ट वुमेन प्रेसिडेंट। एनीवन आंसर। आनी बेसंत थैंक यू। आनी बेसंत। अच्छा आईएनसी रो फास्ट इंडियन वुमेन। इंडियन वुमेन। फास्ट इंडियन वुमेन किस सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अच्छा आईएनसी प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट। इंग्लिश प्रेसिडेंट। आईएनसी प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट। इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। GEORGE यूल्स YULE जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जी की प्रथम इंग्लिश प्रेसिडेंट थे। ओके जॉर्ज यूल। अच्छा तापर लिखो आईएनसी प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट। मुस्लिम प्रेसिडेंट। आईएनसी फास्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। मुस्लिम प्रेसिडेंट बद्रुद्दीन ताइजी। बद्रुद्दीन ताइजी जोटा कि कहली है। तापर लिखो आईएनसी फास्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट। यंगेस्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट। यंगेस्ट प्रेसिडेंट किए से अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम। कलाम आजाद थैंक यू। ଆଉ ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ। बस ଏତିକି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। पूरा क्लियर है टिके रिवीजन कर दो स्पीड रे आरंभ रू। पूरा रिवीजन कर दो स्पीड रे आरंभ रू। एवरीवन रेडी। आ देखो मॉडर्न हिस्ट्री रो मतलब टोटल 10टा क्लास लगे। 10टा क्लास रे टोटल मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो। अब्दुल कलाम। अच्छा आईएनसी रो फर्स्ट प्रेसिडेंट किए क्विक स्पीड रे आंसर दियो। आईएनसी रो प्रथम प्रेसिडेंट किए से क्विक शॉर्टकट रे ना कहबो किछ। उमेश चंद्र बनर्जी। ओके आईएनसी फाउंडर किए होते फर्स्ट फाउंडेशन। आईएनसी रो फाउंडेशन की करथले ए ओ ह्यू। अच्छा ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहाँ कहलो। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा दादा भाई नरोज थैंक यू। हु इज द राइटर ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया फाउंडर की माने लेखक किए से। अच्छा फास्ट सेशन ऑफ आईएनसी जो हेतला केते जण डेलीगेटर पार्टिसिपेट करथले हाउ मेनी नंबर ऑफ डेलीगेटर्स 72। अच्छा एट द टाइम ऑफ आईएनसी फॉर्मेशन हु बिकेम द वाइसरॉय से समय वाइसरॉय किए थे। वाइसरॉय किए थे। ओके अच्छा जदि मु तुमको गोटे स्टेटमेंट किसी दउछि जे आज ए मॉडरेट फेज रो
टाइम लाइन केबेठୁ केबे पर्यंत थिला मॉडरेट फेज रो टाइम लाइन 1885 ରୁ 1905 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ 6 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦବ, କାହିଁକି ନା ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ମଡରେଟ ର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ନଥିଲେ, ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇପାରେ। ଚାଲ, ଆଚ୍ଛା, ଓଏଲବିଲି କମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଓଏଲବିଲି କମିଶନ, WELBY, ଓଏଲବିଲି କମିଶନ 1895। थैंक यू। अच्छा, इंडियन काउंसिल एक्ट केते? इंडियन काउंसिल एक्ट 1882 अनुଯାୟୀ। ओके। अच्छा, ଆମର ଯୋଉ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग थिला आको डिवाइड कर केते भाग होत अछि लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग? चारि भागरे। अच्छा, ଆମର ଯୋଉ सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल अछि, मैक्सिमम मेंबर केते, मिनिमम केते? मैक्सिमम केते, मिनिमम केते? अच्छा, हु इज द फर्स्ट आई वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट? आईएनसी रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए? आईएनसी रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट किए? आईएनसी रो प्रथम भारतीय वुमेन किए? भारतीय वुमेन किए? सचिन नायक। तो थैंक यू स्टूडेंट, तो क्लास आज कंप्लीट सरला। तो तुम मानकर जो आमे जहाँ भी कुछ डिस्कशन कले आर पीडीएफ मु तुम मानक अपलोड कर दे देखिए दउछि। जो माने रैपिड फायर प्रीलिम बैच जॉइन करछ, आउ जो माने जॉइन करछ प्री प्लस मेन बैच रे रैपिड फायर प्रीलिम, जोटा कि एई वर्ष रैपिड फायर और प्री प्लस मेन जो माने जॉइन करछ, ए बैच रे संपूर्ण क्लास रिकॉर्डिंग और पीडीएफ तुम मानक अवेलेबल हिंच। ओके। देखो इकोनॉमिक देखो ज्योग्राफी आउ आपको मु कंटिन्यू करूची, और ज्योग्राफी आउ तुमनकर हिस्ट्री एई मासरे सरजियो, माने जून मासरे सरजियो। जुलाई मास भीतर मु टारगेट रखी थ्योरी क्लास साथी, जुलाई होले अगस्त सेप्टेम्बर और दीटा मास रहला हमको डिस्कशन करे पे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, आउ गोटे कथा मु कहूछ पिले, आज जो करेंट अफेयर क्लास अछि एटा रिकॉर्डिंग फॉर्म अछि।